Today, Intech Purnia chapter, it is hosting one of the largest quiz competition in India. It is from the quiz competition is called as Intech India Heritage Quiz 2022. Now, we are hosting this in the new auditorium of Vidya Vihar Residential School, Paroda, Purnia, and Intech Purnia chapter is all set for this quiz competition. Today we will have two rounds. First of all, we will have the written round in which more than 70 teams are participating. After that, after this elimination round, we will have the stage round. In that stage round, we will have 5 rounds, one on culture, another on personality, the third one on state, fourth one on the city, and fifth one on the Intech. The 4 best teams which will be selected out of the prelim round, they will be included in the stage round, and out of them, the best team which will be selected, that will be considered as the district champion. We will be sending the best team to the state round, which is going to be in October, November. And then if that team wins there, the Intech Purnia chapter will be sending it for the national round. This is what we have today, and we wish all the best to all our participants, to all the people who have supported us in this program.
तैयारी जो है तैयारी भी हो गई और आगे फ्यूचर में आप लोग को बहुत अच्छा करना है। यहाँ के आईएएस टॉपर निकले हैं, हमको तो बड़ी खुशी हुआ जब हम देखे, और ये आप लोग के लिए भी प्रेरणा की बात है। आप लोग बहुत अच्छा करें। और सर ने जैसे बताया कि हम लोग पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं, लाते हैं कि जिससे लोग जुड़ा रहे। कोई भी क्यों जुड़ेगा, कोई उसका महत्व समझ में आएगा तब। उससे ऑक्सीजन मिल रहा है, चारों तरफ पेड़ पौधा लगा है, सरकार अपना वन विभाग काम कर रहा है, मनरेगा भी काम कर रहा है। लेकिन जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। आम आदमी जब तक चीज़ों में नहीं जुड़ता है तो वो डिपार्टमेंट भी काम अपने हिसाब से करता है, लेकिन और खुश होकर करता है कि सब लोग जुड़ गए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग घर पे जाएं, पेड़ पौधे लगाएं, और साथ में जो पुराने पेड़ पौधे हैं जिनको आप लोगों ने बचपन से देखा है उन्हें बचाने का भी प्रयास करें। We are just waiting for few more moments. We are waiting for one of the dignitary, one of the chief guest who is going to preside here, and we also have Mrs. Archana, who was the content writer for the KBC for very long years. Give a big hand for her also. So children and all the participants and all the guests, we request you to just keep patience for a few more moments. We are just waiting for one of our dignitaries, the Commissioner of Purnia Commissionary. He will be coming very soon between us. In the meantime, we will be watching some of the KBC programs, early programs. Thank you. सुशील कुमार जी, 5 करोड़ रुपए। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 16 अक्टूबर 1868 को अंग्रेजों के हाथों निकोबार द्वीप समूह बेचने के बाद भारत से किस औपनिवेश शक्ति का अंत हो गया था? The rights of the Nicobar Islands to the British on October 16th, 1868. सर इटली आया नहीं, फ्रांस बाद में गया, यही बेल्जियम डेनमार्क में सर कोई है। आपके पास अब एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप, जो यही कर सकती है आपके लिए। इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं, तो फिर बचे यही दोनों ना सर। अच्छा, ये पी लीजिए। हाँ जी सर, उसको नहीं पियेंगे सर, ऐसे बहुत प्रेशर है सर। ठीक है, ठीक है, ज्यादा मत पीजिएगा। हाँ जी सर। कंप्यूटर जी, सुशील कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंकित किया जाए। सुशील कुमार जी, कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। गेम अब आप क्विट नहीं कर सकते हैं, आपको खेलना ही पड़ेगा। बताइए। पहला सर डेनमार्क। कंप्यूटर जी, सी डेनमार्क पे ताला लगाया जाए। अद्भुत, 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 वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अद्भुत खेल, अद्भुत खेल। जी जी जी, अच्छा अच्छा, बस 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 5 करोड़ रुपए के विजेता। Here we have Honorable Commissioner Purnia. The chief guest is between us. Please be seated, everybody. Let us give a big hand for our chief guest, one of our chief guests, please. Thank you, sir, for gracing the occasion. Now, हमारे बीच जो डिग्निटरीज अवेलेबल हैं, कमिश्नर साहब और केबीसी विनर सुशील जी, क्विज मास्टर अर्चना जी, जिला हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे बीच में हैं। बच्चों ने उन्हें बचे हुए बुके देकर उनको सम्मानित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम ऑल्सो। अर्चना जी जो हमारे बीच में क्विज मास्टर हैं, सुशील जी हमारे बीच में हैं। बच्चों, आप सभी लोग इनसे फैमिलियर हैं। ये फर्स्ट टाइम 5 करोड़ विनर थे केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में। इंटेक पूर्णिया चैप्टर के कन्वीनर श्री राजेश जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीबॉडी। गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। प्रिंसिपल साहब, जिला स्कूल, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड।
Now I request the Honorable Chief Guest, Commissioner Sahab, to give a motivational speech on this occasion. Thank you, sir. विद्या विहार के आयोजकगण, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा का माहौल में आज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिससे बच्चे के बुद्धि का विकास होता है, सोचने की क्षमताएं बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ती है। आज समाज में आर्थिक असमानता के कारण दो वर्ग हो गए हैं। एक वर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चों को सब सुविधाएं मिल रही है और दूसरे वर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चों को समुचित शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा ही एक साधन है जिससे आप गरीबी को सदा के लिए मिटा सकते हैं। यही एक साधन है। ह्यूमन डेवलपमेंट देश के विकास का सबसे बड़ा इंडेक्स है। हम कितना हो सड़क बना लें, कितना हो बिल्डिंग बना लें, कितना भी सुख सुविधाएं का विकास कर लें, लेकिन जब मानव का विकास नहीं होगा तो देश का समग्र विकास नहीं होगा। आज बढ़ती हुई आबादी हमारे सारे संसाधनों को छीन रही है और बढ़ती हुई आबादी के कारण लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन रोजगार उस लायक नहीं मिल पा रहा बच्चों को। शिक्षा में भी क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें विद्या विहार भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और उसने शिक्षा के क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है। अब केवल लिटरेट होने की आवश्यकता नहीं है, अब क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है। कॉम्पिटिटिव माहौल में आगे बढ़ने की जरूरत है। हर बच्चों को समान रूप से विकसित होने की आवश्यकता है। जो भी बच्चे जहां भी हैं, जिस हालात में हैं, गरीबी में हैं, अमीरी में हैं, उसे अब मानसिक रूप से निर्णय लेना होगा कि मुझे कुछ करना है। ताकत तेरे अंदर है बच्चों, बाहर कुछ मत खोजो, अपने आप को समझो, अपने आप को ढूंढो और अपने आप को जानो और आगे बढ़कर निश्चय करो, निर्णय करो। तेरा मंजिल तेरा इंतजार करेगा और तुझे विकास के हर पैमानों पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तुम्हें समाज में एक इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी और एक अच्छा स्थान मिलेगा। मैं सभी बच्चों को शुभकामना देता हूं। अगर मेरी बात से 5 बच्चे भी आज निर्णय ले लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि मेरा आना यहां सार्थक हो गया। और अगर इससे अधिक बच्चे अब निर्णय लेते हैं तो जिला क्या, राज्य क्या, देश की तकदीर बदल जाएगी। और अगर उन्हें राज्य में रोजगार नहीं मिला, देश में रोजगार नहीं मिला, तो विदेशों में भी रोजगार उसका इंतजार करेगी और हमारा भारत विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय हिंद, जय भारत। Let us give a big hand again for Commissioner Sahab for such a motivational speech.
Now, we would request Sushil ji. Okay. Now, we would request the quiz master sitting with us, Mrs. Archana, who was also, I already told you, the content writer for the KBC. We request her to come on the stage, declare the result of today's preliminary round, and also say a few words, and also tell us the rules and regulations for the next round. Thank you, ma'am. Please come, ma'am. Please give a big hand for her, to welcome her. Respected Commissioner साहब एंड जो भी बाकी यहाँ पे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स एंड राजेश जी खासकर और रमन जी, उनको खास तौर से इसलिए नाम उनका मेंशन कर रही हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ आई हूँ। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज यहाँ पे एक इतना बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं मतलब करीब 10 साल से मैं बिहार में कार्यरत हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग स्कूलों में जाती हूँ, बच्चों के बीच में काम करती हूँ, लेकिन इतना बेहतरीन प्रोग्राम मुझे पहली बार देखने को मिला है। और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, मतलब जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ। आप, क्योंकि केबीसी की चर्चा बहुत बार यहाँ पे हुई, तो केबीसी का एक टैगलाइन हुआ करता था 2 साल पहले, आपका ज्ञान ही आपका हक दिलाता है। कितने बच्चों को याद है ये टैगलाइन? चलो, मतलब कि केबीसी, इतना तो मैं समझ गई कि केबीसी बराबरी का दर्जा मिला। तो अक्सर हम कहते हैं कि महिलाओं को एम्पावर करो, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। आज के डेट में हर एक माँ बाप जिस तरीके से बेटे को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से बेटी को भी पढ़ाते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचो कि आपको अलग से कुछ मिलना चाहिए, नहीं, आपको मिल रहा है, आपको एक बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। और आपको खुद के दम पे ये साबित करना है कि आप किसी भी कीमत में अपने जो भी आपके लड़के दोस्त हैं, जो भी आपके सहपाठी हैं, उनसे कम नहीं हैं आप लोग। तो पहली टीम जो हुई है सेलेक्ट, वो सीनियर डीएवी स्कूल से हैं और नाम है, कोई गेस करेगा क्या? Anybody would like to guess? अब Wow. वाह, आप टीचर हैं क्या? अच्छा, इसलिए मतलब एक शिक्षक ही अपने मतलब जो उनके विद्यार्थी होते हैं उनको सबसे अच्छे से समझता है। Please give a big hand for Astha and Sneha. Astha and Sneha, now you will be forming the team Ganga. Please come on stage. They will be representing the team Ganga. Please give a big hand for them. और ये मतलब बहुत ही खुशी की बात है कि जो पहली टीम है वो हमारी बेटियां हैं, तो इनके लिए डबल अच्छे से ताली, जोरदार। दूसरी टीम है ब्राइट कैरियर स्कूल से, और ब्राइट कैरियर स्कूल के बच्चे किधर बैठे हुए हैं? विक्षा आर्या और आयुषी सिंह। प्लीज स्टैंड अप, प्लीज गिव ए बिग हैंड। देखिए ना, ये हमारी दूसरी टीम भी बेटियों की टीम है, तो जोर की ताली तो बनती है इनके लिए। नाउ प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड यू विल बी फॉर्मिंग द टीम। टीम है विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल से। लेकिन ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो आप लोगों को सारी टीमों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल सही। राघव मिश्रा और यश। राघव मिश्रा और यश के लिए एक जोर से ताली बजाएंगे लोग। और चौथी टीम है रेजिडेंशियल DAPS स्कूल। Now in the meantime, Raghav and Yash will be forming the team Kosi. और रेजिडेंशियल DAPS स्कूल के बच्चे कहाँ पे हैं? तो इसमें है जो नाम है फाहिम अख्तर और अभय मिश्रा। Please give a big hand for Fahim and Abhay. Both of you come on the stage. You will be forming the Sora team. Fahim and Abhay. तो ये पूरा जो क्विज होगा ये 4 टीम के बीच में होगा, जिसमें 5 राउंड खेले जाएंगे। मगर एक राउंड स्पेशल राउंड है जो कि वो उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पे आए जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया बट क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि आप लोग जो भी बच्चे आज क्वालिफाई नहीं किए हो ना, ये मत सोचना कि आप हार गए, क्योंकि विनर सभी हैं। चलिए क्विज शुरू करते हैं। और
इसकी शुरुआत जो हम पहले जो फर्स्ट राउंड हमारा होगा वो होगा एक, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएं, मतलब कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे और उन इमेजेस के बीच में एक कनेक्शन होगा, ठीक है। तो आपको उस कनेक्शन को ढूंढना है। तो पहला जो क्वेश्चंस हैं वो टीम गंगा के लिए है। तो चलिए क्विज की शुरुआत करते हैं और पहले राउंड से। और पहला राउंड का पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहला राउंड है वो कुछ इमेजेस दिखाए जाएंगे और आपको उन इमेज के बीच का कनेक्शंस निकालना है। तो पहला क्वेश्चन राउंड 1 का, व्हाट इज द कॉमन कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स? आपको 3 इमेज दिख रहे हैं, एक बुलंद दरवाजा है, एक हुमायूं का मकबरा है और एक ताजमहल है। इन तीनों इमेजेस के बीच में क्या कनेक्शन है, कॉमन कनेक्शंस क्या है इनके बीच में? और ऑडियंस कोई भी नीचे से नहीं बोलेगा कुछ भी, क्योंकि अगर आप नीचे से बोले तो आपका प्राइज कट, ठीक है। इसलिए ऑडियंस से तभी बोलेंगे ऑडियंस जब उनसे पूछा जाए, वरना अपना नुकसान कर जाओगे। These all monuments are built by the emperors of Mughal Empire. आंसर दिखाया जाए। वाह, वेरी। Please give a big hand for them. आपको कैसे पता चला कि ये सारे मुगल? ताजमहल तो पता है कि बहुत इजी है। Humayun is the name of Mughal Empire. And Buland Darwaza, when Akbar won Gujarat, I think, then he built this Buland Darwaza. Over his वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनके लिए एक तालियां हो जाए, क्योंकि बुलंद दरवाजा के बारे में इनको पूरी जानकारी है कि इसे अकबर ने गुजरात विक्ट्री के बाद बनाया था। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो काफ़ी इजी हैं, ताकि आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल होके खेलो। क्योंकि ये जो है ना, कोई कंपटीशन देके आप यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ पे आप इंजॉय करो, ठीक है। जैसे केबीसी में होते हैं ना बड़े इजी सवाल, जो बैठे होते हैं स्क्रीन के बाहर, वो फटाफट आंसर करते हैं। अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ है, उसको नहीं आ रहा है, इसका तो ये आंसर है ना। तो ऐसे ही वो लोग आज कर रहे हैं। तो ये मौका नहीं देना है किसी को, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल बहुत ईजी हैं, तो कहीं पे कोई मुश्किल नहीं आएगी। दूसरा सवाल टीम कोसी के लिए। अरुणेश जी, What is the common connection between all these actors? बॉबी देओल, सिद्धार्थ और अजय देवगन। They all are from Bollywood. बॉलीवुड तो है ही ना, एक्टर तो डाला हुआ ही है। इन एक्टर्स के बीच में क्या कनेक्शंस हैं? पास। किसी को पता है ऑडियंस में से? सर बच्चे के लिए सवाल। किसको पता है? आ जाओ, जो फटाफट, जो यहाँ पे जल्दी पहुंचेगा उससे पूछा जाएगा। अरे दौड़ के आओ, ऐसे बोलने से थोड़ा ना चलेगा। और जो जवाब देंगे उनको चॉकलेट्स भी मिलेगा। हाँ, चॉकलेट्स भी मिलना है। जिसको ही पता है वो आप दौड़ के यहाँ पे आए, सबसे पहले जो आएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन कम आ हियर। जाओ, कौन आपको पता है? आ जाओ, कम। ऑल आर Punjabis. Siddharth is not a Punjabi actor. He is from South India. रंग दे बसंती कितने लोगों ने देखा है? रंग दे बसंती में एक डॉक्यूमेंट्री होती है, किसी को पता है? उस डॉक्यूमेंट्री में सिद्धार्थ भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं। बॉबी देओल भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किए, सिद्धार्थ ने भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है और अजय देवगन ने भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है। तो तीनों ने भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया है। इतने लोगों में किसी को नहीं पता। रंग दे बसंती इतनी अच्छी मूवी है, इसे देखना घर जाकर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चंस है टीम शौर्य के लिए। व्हाट इज द कॉमन कनेक्शन बिटवीन ऑल दीज मेमोरियल्स? शांतिवन, विजय घाट एंड शक्ति स्थल।
all monuments are present in Bihar. प्रेजेंट इन बिहार, रॉन्ग। किसी को पता है? यस, इनको ट्रॉफी दिया जाए। आप अपना नाम बताएंगे? ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स। किस स्कूल से हैं आप? वेरी नाइस, गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। ये भी बताइए, एक मिनट इधर आइए, ये भी बताइए कि किन किन का मॉन्यूमेंट्स है। मैम शांति वन है नेहरू जी का, विजय गाथा है लाल बहादुर शास्त्री जी का, और शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। अब चौथा क्वेश्चन है टीम महानंदा के लिए। चौथा क्वेश्चन दिखाया जाए। What is the common connection between all these monuments? Victoria Memorial, India Gate, and Gateway of India. These all are made by British. These all were made by Britishers. Can you bit louder? Can you bit louder, beta? These all were made by Britishers. पक्का? And I think Britishers. yes, ma'am. तो दमदार हो गए, बोलो दमदार वॉइस में बोलो। These all were made by Britishers. वेरी गुड। और कुछ आप भी इसके बारे में बताना चाहेंगे? ये मॉन्यूमेंट्स कहाँ है, कैसे बना है? Victoria Memorial is in Kolkata and India Gate Delhi and Gateway of India is in Mumbai. ओके, तो थोड़ा सा तालियां बज जाए भाई, सही सही आंसर किया इन्होंने। क्वीन विक्टोरिया के मेमोरी में विक्टोरिया मेमोरियल बना था। इंडिया गेट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनके मेमोरी में बना है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और यहीं से जो ब्रिटिश के जो आखिरी ट्रूप्स थी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जो ब्रिटिशर्स बच गए थे हिंदुस्तान, जो आखिरी खेप जो निकली थी वो यहीं इसी गेटवे ऑफ इंडिया से निकली थी। तो ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है। ठीक है, तो अपनी आज़ादी के लिए एक तालियां हो जाए। अभी हमने 75 वर्ष पूरे किए। तो चारों टीम के लिए हो गया चारों क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जो हम ऑडियंस से खेलेंगे। ठीक है, तो कौन खेलना चाहेगा? हाथ उठाए। आप आइए, आप सेकंड। नहीं, आपके स्कूल से हो गया, आप आओ बेटा। हाँ, अगला क्वेश्चंस दिखाया जाए। जल्दी जल्दी दौड़ो, एनर्जी दिखनी चाहिए। What is the common connection between all these monuments? हिंदू टेम्पल्स तो है ही, हिंदू ही होगा। मतलब अपना नुकसान कराने में आज सारे बच्चे माहिर हैं। हमारे बीच नहीं पता? विद्या विहार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर खड़े हो, आ जाओ। श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी पधारे हैं। बच्चों, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। सर, वी होलहार्टेडली वेलकम यू इन टुडेज क्विज कंपटीशन। और मैं अपने बच्चों से आग्रह करूंगा कि सर को सम्मानित करें। प्रीति मैम, please sit down, be seated. Ma'am, these all temples are built for the Lord Shiva, which is deity Shiv. वेरी गुड। ये तीनों ही मंदिर, क्योंकि बड़ा ही मतलब मुझे तो लगा था ये फटाक से आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, काशी विश्वनाथ बनारस में, और महाकाल उज्जैन में। तीनों ही मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड 2 की शुरुआत करते हैं अब। और राउंड 2 की शुरुआत हम करते हैं टीम महानंदा से। हाँ, तो अभी तक मेरे ख्याल से एक गलत हुआ है इनका, टीम कोसी का, और इनका भी। अच्छा, तो सेकेंड राउंड के बाद हम वो बताएंगे, पॉइंट्स बताएंगे इनके। तो पहला क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चंस दिखाइए। अब इसमें क्या है, 6 ऑप्शंस हैं, आपको दिख रहा है? अगर संभव हो तो फॉन्ट को ब्लैक कर देंगे, इसको स्क्रीन को नीचे बंद करके।
ऊपर जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं उनके लिए है ये। Arunesh ji, if we can try just. हाँ, स्टॉप करके फॉन्ट को ब्लैक कर दीजिए और आप पीपीटी बंद करके जरा फॉन्ट को ब्लैक कर दीजिए। नहीं सर, वो क्लिक करना है, सेलेक्ट नहीं होता। Yes sir, it's visible now. अब विजिबल है? Somehow ठीक visible. है। फ्रीडम फाइटर्स हैंग्ड बाय ब्रिटिश, मतलब ऐसे इनमें ऐसे 6 फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जिन्हें फांसी दी गई थी एंड 3 ऐसे हैं जो कि ऐसे ही मतलब उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। तो इसमें से 6 नाम आप जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे हम उस पर क्लिक करेंगे। फटाफट बोलिए। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, मंगल पांडे। आप क्लिक करते जाइए। खुदीराम बोस, मंगल पांडे। खुदीराम बोस दिख रहा है क्या? No, we have to go back. नहीं नहीं नहीं, हम आगे बढ़ गए हैं। The slide has changed. हाँ हाँ, खुदीराम बोस, मंगल पांडे एंड राम। मंगल पांडे एंड मंगल पांडे, हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। और आगे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह। दूसरा जल्दी जल्दी, टाइम अप हो रहा है। नहीं, इनको आप, क्योंकि हर राइट चॉइस के लिए 5 मार्क्स हैं तो इनको 20 मार्क्स आप दीजिए। और इसको कोई कंप्लीट करना चाहेगा? इसमें से 2 और नाम हैं जिन्हें फांसी दी गई थी। आप आओ। नहीं, आपको आपके लिए एक है क्वेश्चंस, तो ये हम उन लोगों के साथ खेलेंगे, ठीक है? जल्दी दौड़ के, एनर्जी दिखनी चाहिए। एनर्जी के लिए एक अलग से टॉपिक। पहले अपना नाम बताइए और स्कूल। My name is Sagar Anand and I am from Mount Carmel English School. And the another 2 right answers are, first is Rajguru and the second is बटुकेश्वर दत्त। राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को क्लिक कीजिए। राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त गलत है, बटुकेश्वर दत्त गलत है। और कोई बोलना चाहेगा? इनको ट्रॉफी दिया जाए। राजगुरु के लिए इनको ट्रॉफी मिलना चाहिए। हाँ, आइए। नाम और स्कूल बताइए। My name is Neeraj Raj. I am from BVM High School. BVM High School, very good. मदन लाल धिंगड़ा। मदन लाल धिंगड़ा बिल्कुल सही, इनको ट्रॉफी दिया गया। हाँ, और बाकी जो 2 हैं, बाघा जतिन। बाघा जतिन ने जेल में करीब 64 दिनों तक उन्होंने उपवास किया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और दूसरे प्रफुल्ल चाकी हैं, उनको उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी, तो इसी तरीके से प्रफुल्ल चाकी ने भी अंग्रेजों के गिरफ्त में आने से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वो है टीम शौर्य के लिए। तो टीम महानंदा को इसके लिए 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं। स्लाइड चेंज कीजिए और अगर हो सके तो नेक्स्ट में आप ब्लैक कर दीजिएगा तब तक। फेमस क्लासिकल सिंगर्स, मतलब इनमें से 6 ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्लासिकल सिंगर हैं और 3 नहीं हैं। तो आपको एक एक करके उनका नाम बताना है और थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। कितने बच्चों को नींद आ रही है? क्यों नींद आ रही है? क्योंकि लंच करके डायरेक्ट इधर आ गए? हाँ, कितने बच्चों को मजा आ रहा है? चलो, नींद आने वाले बच्चों से ज्यादा संख्या है मजा आने वाले बच्चों की, है ना? मैं बहुत दूर से आई हूं, तो मैं आप लोगों से गिफ्ट लेके तो जाऊंगी ना, खाली हाथ तो जाऊंगी नहीं। कितने बच्चे मुझे गिफ्ट देंगे? इसमें कंजूसी है।
चलिए मैम, द स्क्रीन इज ऑन मैम, द आ गया? स्क्रीन इज, अच्छा, चलो अब गेम की शुरुआत करते हैं। फेमस क्लासिकल सिंगर्स। अब इसमें से 6 ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्लासिकल सिंगर हैं और 3 ऐसे हैं जो क्लासिकल सिंगर नहीं हैं। तो आपको क्लासिकल सिंगर्स का नाम एक एक करके बताना है। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, पक्का लता मंगेशकर क्लासिकल सिंगर ही है? हाँ, चलो आगे, जल्दी जल्दी। पंडित उदय शंकर। पंडित उदय शंकर, लो ये तो यहीं पे आउट हो गए। इनको 5 नंबर दिया जाए। और कोई इसको कंप्लीट करना चाहेगा इस ग्रिड को? जल्दी पीछे से कोई दौड़ के आओ, पीछे से। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बस दौड़ के आ जाओ। जो जब सबसे जल्दी आएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। अच्छा, एक बच्चा प्लीज, वन ऑफ यू। ओके फाइन। हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, दोनों आओ। मैम पंडित जसराज, बिरजू महाराज। पंडित जसराज, बिरजू महाराज। MS सुभा लक्ष्मी। बिरजू महाराज तो है नहीं सिंगर। चलो एक तो बोला, इनको एक चॉकलेट दिया जाए क्योंकि एक सही आंसर इन्होंने किया। MS सुभा लक्ष्मी। MS सुभा लक्ष्मी। दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के हैं सिंगर? कितने बचे हैं उसमें? डायरेक्टर है ना? जरा क्लिक कीजिए दादा साहेब फाल्के पे। तो चलो 3 आंसर रिवील हो गया, मतलब 6 आंसर तो अपने आप आ गया। तो इनको भी ट्रॉफी दिया जाए, कम से कम एक तो इन्होंने सही किया। चलिए गिव अ बिग हैंड फॉर हिम प्लीज। हाँ, सुभा मुदगल भी क्लासिकल सिंगर हैं, भीमसेन जोशी क्लासिकल सिंगर हैं और भारत रत्न भी हैं वो। और बड़े गुलाम अली खान भी क्लासिकल सिंगर हैं और बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे जो। और इनके बहुत सारे जो मोहम्मद रफ़ी वगैरह का जो नाम आप सुनते होंगे, आपके पिताजी सुनते होंगे उनके गाने, और आप लोग भी शायद सुनते होंगे, नहीं सुनते हैं तो सुनना चाहिए। तो बड़े गुलाम अली खान उनके गुरु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस है टीम कोसी के लिए। फेमस पेंटर्स, इनमें से 6 ऐसे हैं जो फेमस पेंटर हैं। MF हुसैन। MF हुसैन। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। और अगला नाम तीसरा? एंजोली एला मेनन। एंजली एला मेनन। ओ क्या कर रहे हैं कंप्यूटर जी, क्या कर रहे हो आप? हाँ, हमारे कंप्यूटर जी आज थोड़े से नर्वस हो गए हैं। अगला नाम? भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी, क्लिक किया जाए। भीमसेन जोशी। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? SH राजा। नहीं, भीमसेन जोशी इसमें मेरे ख्याल से गलत आ गया है। अच्छा आगे बोलिए। SH राजा। SH राजा। आगे। अमृता प्रीतम। नहीं। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम तो नहीं थी, है ना? अमृता प्रीतम कौन थी? राइटर थी। आप लोगों की किताब में शायद उनकी कोई कहानी भी होगी। अनुष्का शंकर भी नहीं है। अनुष्का शंकर कौन है? अनुष्का शंकर कौन है, कौन बताएगा? हाँ, अनुष्का शर्मा नहीं बोल रही हूँ, अनुष्का शंकर बोल रही हूँ। मतलब सबकी नजर अनुष्का शर्मा पे। हाँ? पंडित रविशंकर की बेटी। पंडित रविशंकर की बेटी है वो। और अमृता शेरगिल जो है वो पेंटर थी। मेरे ख्याल से आप अमृता प्रीतम और अमृता शेरगिल में कंफ्यूज हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका है 4 3 2 5, मतलब 25 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन लाइए।
और ये क्वेश्चन है टीम गंगा के लिए। क्वेश्चंस आप पढ़ लिए। भक्ति मूवमेंट के संत जो कि कृष्ण को मानते थे। लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी, हाँ, जो भक्ति मूवमेंट एंड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड योर फर्स्ट चॉइस इज? इट्स मीराबाई। मीराबाई, वेरी इजी। सेकेंड? मीराबाई। कबीर। 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 कितने लोग सहमत हैं कबीर कृष्ण के भक्ति? नो, लो, हो गया आपका गेम तो यहीं खत्म हो गया। अब बाकी इसको पूरा कोई और करेगा? नहीं, पीछे से किसी को बुलाओ। अच्छा, लो Boys, yes, please be seated now. Already 2 students have come. Please tell your name and school name. I am Abhishek Kumar from Bright Career School, and the answer is Chaitanya Mahaprabhu, Madhavacharya. चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य। बाकी दादू दयाल। दादू दयाल। चैतन्य महाप्रभु को भी क्लिक कीजिए। गलत है दादू दयाल, फिर भी आपने 2 सही आंसर किया है। बाकी चैतन्य महाप्रभु को क्लिक करेंगे। जयदेव। जयदेव। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। ये एसएस राजा क्यों आ गया इसमें? पता नहीं क्या है। गुरु नानक। गुरु नानक। दादू दयाल गलत है ना बेटा? दादू दयाल शिव भक्त थे। दादू दयाल शिव भक्त है। गुरु नानक निर्गुण संत थे और कबीर भी निर्गुण संत थे, किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। और ये एसएस राजा मेरे ख्याल से इसमें कुछ कलर चेंजिंग में इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, तो एसएस राजा उस दूसरी स्लाइड से इसमें आ गया है। तो इनका पॉइंट्स आपने लिख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट राउंड आप स्टार्ट कीजिए। नहीं अभी, अच्छा कोई और ऑडियंस से और कोई खेलना चाहता है क्या? एक क्वेश्चन और है हमारे पास। सबसे पीछे से जो बच्चा है वो आएगा, वो सबसे पीछे वाला। ठीक है ठीक है, आओ आओ, जल्दी आइए प्लीज। जल्दी जल्दी दौड़ के देखते हैं यहाँ पे उसेन बोल्ट कौन है। उसेन बोल्ट ये है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? My name is Akshit Raj and I am from Vidya Vihar. चलिए क्वेश्चन क्या है? हिस्टोरिकल फिगर्स बोर्न इन वाराणसी। ऐसे हिस्टोरिकल फिगर जो वाराणसी में जन्म लिए हों। कैन यू नेम एनी वन ऑफ देम? बिस्मिल्लाह खां। कंप्यूटर जी बिस्मिल्लाह खां को क्लिक कीजिए। वाह। पंडित रविशंकर। वाह, 2 चॉकलेट तो आपकी बन गई है। महादेवी वर्मा। गलत हो गया, अरे प्लीज इनको 2 टॉफी दिया जाए, 2 चॉकलेट दिया जाए। रानी लक्ष्मीबाई। अपना नाम बताइए और स्कूल बताइए। इरम इफ्जाल और VVRS। VVRS। और मुंशी प्रेमचंद। कमालापति त्रिपाठी। ट्रायल ले रहे बेटा या? मैडम ये मदन मोहन मालवीय। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम। चॉकलेट भी 2 टॉफियां इनको मिलेंगी। मुझे रानी लक्ष्मीबाई पर डाउट था कि कोई भी आंसर कर पाएगा, बट रानी लक्ष्मीबाई आंसर हो गया। अब तुक्के से हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये राउंड यहीं पे खत्म करते हैं और अगले राउंड की शुरुआत करते हैं। आप वैसे कमलापति त्रिपाठी जिसने बोला वो बताइए कमलापति त्रिपाठी कौन थे? हाँ बेटा आपने किया ना आंसर। हेलो
कौन थे कमलापति त्रिपाठी? नहीं पता। चलो कभी कभी तुक्का भी काम आ जाता है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही गलत कुछ नहीं होता जब तक आप में कॉन्फिडेंस है ना। तो सामने वाले को चुप कर दो अपने कॉन्फिडेंस से। अगले राउंड की शुरुआत करते हैं और अगला राउंड की शुरुआत होगी हमारी टीम गंगा से। अगला राउंड की शुरुआत करते हैं, ये नहीं आगे राउंड 3। राउंड 3 जो है वो हमारे बिहार के हेरिटेज और यहाँ के जो भी पर्सनालिटी है उनके ऊपर है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है टीम गंगा के लिए और इसके लिए भी पर राइट आंसर 10 मार्क्स मिलेगा आपको। सेकेंड राउंड का सारा मार्किंग हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिखाइए। आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट सिचुएटेड इन बिहार। टॉम्ब ऑफ बख्तियार खिलजी, महाबोधि टेम्पल, बाबू कुंवर सिंह स्मारक या फिर टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। फिर कोई आंसर नहीं देगा पीछे से, ये गलत बात हुई। फिर मैंने आप लोगों से गिफ्ट मांगा था ना, यही मेरा गिफ्ट है कि आप लोग मुंह बंद रखेंगे और किसी भी टीम को हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चों बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, तब वो राइट वे नहीं हुआ। हाँ आंसर बोलिए। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। पक्का? शेरशाह सूरी तो दिल्ली के राजा थे, फिर यहाँ पे कैसे हो गया? सासाराम। चलो कंप्यूटर जी क्लिक कीजिए। क्लिक किया जाए शेरशाह सूरी पे। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर देम। शेरशाह सूरी भले ही दिल्ली में वहाँ पे शासक थे, लेकिन बिहार के आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। The shape of this tomb is an octagonal, means having the 8 sides, so we can identify easily that it is 8-sided tomb. And also Mahabodhi temple can't relate with this because in Mahabodhi temple we have one tree that is called a Mahabodhi tree, also known as a people tree. There is tomb of Bakhtiyar Khilji, it is not located in Bihar. And Babu Kuwar Singh Smarak is in Patna, I think, and it is kind of a picture having a horse and a one man. अब मुझे 2 चॉकलेट दीजिए, कम से कम एक तो दीजिए ही, है ना। हाँ, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन का आंसर देना तो अलग बात है, लेकिन इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन होना बहुत बड़ी बात है। बच्चों प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर देम। वेरी नाइस। क्विज जो होता है ना, हम क्विज क्यों करते हैं? क्विज यही माहौल हमें देता है, हमें एक कॉन्फिडेंस देता है और हमारे जो नॉलेज होते हैं ना उसको दिखाने का मौका मिलता है हमें, और साथ ही जो जिनके पास नॉलेज है उनसे सीखने का हमें मौका मिलता है। तो इसलिए इस तरह का जो भी इवेंट होता है ना वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगला क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टीम कोसी के लिए। विच ऑफ दीज इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट डे बिहार। अब इनमें से लाइफ मतलब गौतम बुद्ध के जीवन में 4 डिफरेंट स्टेजेस थे जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे, जिनमें से एक जो था वो बिहार में हुआ था, बाकी अलग अलग जगहों पे हुआ था। तो अब इनमें से कौन सा ये इवेंट है जो कि बिहार में हुआ था? बिहार से एसोसिएटेड। बिहार से एनलाइटनमेंट। कंप्यूटर जी क्लिक कीजिए एनलाइटनमेंट को और प्लीज गिव अ बिग हैंड। और मैं चाहूंगी कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी आप ही बताएं। राघव कुछ बारे डिटेल में बताएंगे? थोड़ा सा डिटेल आप बताएं। एनलाइटनमेंट क्या था, कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ? He got enlightened in बोध गया। इन बोध गया, जहाँ पे महाबोधि टेम्पल लोकेटेड है। वेरी गुड। तो इनके लिए भी एक ट्रॉफी दे दीजिए। अब दूसरा थर्ड क्वेश्चन है आप दोनों के लिए है। तीसरा क्वेश्चन टीम शौर्य के लिए। Which is wetland in Bihar is declared as the first Ramsar site in the state? केवलादेव, सोनपुर हरिहर क्षेत्र, वाल्मीकि नेशनल पार्क या फिर कांवर लेक? ये अभी लास्ट ईयर का ही न्यूज है। Which wetland in Bihar is declared as the first
Ramsar site in the state? ये एक पक्षी विहार है और यहाँ पे बहुत करीब एकर्स में ये पूरा जो जमीन है वहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है। चलिए जल्दी से बता दें, जल्दी बताइए, टाइम अप हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क क्लिक किया जाए। आपको क्यों लगा वाल्मीकि नेशनल पार्क है? वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब कहीं ना कहीं तो पानी से रिलेटेड है, मतलब गीला जमीन। गीला जमीन कौन सा है इसमें? लेक है ना। कितना बड़ा हिंट था इसमें। कांवर झील। कांवर झील जो है बिहार का पहला रामसर साइट है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसी जगहों को रामसर साइट के उसमें डाला जाता है, जिसमें से बिहार का भी ये कांवर झील जो है वो लास्ट ईयर ही ये हुआ था। और यहाँ पे अगर आप लोग नहीं गए हैं तो अपने अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल सर से बात कीजिए, मैम प्रिंसिपल सर या जो भी हो, और जरूर जाइए, ठीक है। Yes, children, can we have minute of silence? नेक्स्ट क्वेश्चन है महानंदा टीम के लिए। About which poet it is said that the Lord Shiva resided in his house as a servant named Ugna? विद्यापति। विद्यापति। अरे वाह, इतना जल्दी आंसर कैसे? मुझे तो लग रहा था बिहारी होंगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छी। और ये बहुत अच्छा लगा कि काफी आंसर्स हुए और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, तो कुछ अगर चाहें तो पीछे के बच्चे आके खेल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। Which ancient university lends its name to Gangetic Dolphin Sanctuary on a stretch of Ganga in Bhagalpur? ऑप्शन ए विक्रमशिला। विक्रमशिला को क्लिक किया जाए। वाह, इनको टॉफी दीजिए। अगला क्वेश्चन, जो भी इसको अटेम्प्ट करना चाहता है फटाक से आगे आ जाए। Which of these films is based on फणीश्वर नाथ रेणुज स्टोरी मारे गए गुलफाम? ये आपके जिले का पूरा सवाल है। So many students have come. Please tell your name and school. Yes. Name and school. My name is Prem Chaudhary. I am from VVRS and the movie is Tisri Kasam. Wow. Please give a big hand for him. Oh, very good. और ये इस तीसरी कसम का कुछ गाना वाना किसी को याद है? हाँ? नहीं। कौन हीरो हीरोइन था ये तो याद होगा। राज कपूर। लगता है स्कूल में दिखाया गया है ये फिल्म कि भाई रेणु जी की कहानी पे है तो इसको दिखाओ बच्चों को। ऐसा है क्या? चैप्टर है? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था चैप्टर है, वरना मैं ये सवाल नहीं डालती। फिर अब अगली बार से क्विज सेट करूंगी, उससे पहले देखूंगी किस पे चैप्टर है, तो वो क्वेश्चन नहीं डालना है, ठीक है। चलो अगले राउंड की शुरुआत करते हैं। और अगला राउंड है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होगा, ठीक है। मैम मार्क्स डिक्लेयर करेंगे इसका। हाँ, हाउ मेनी मार्क्स फॉर दिस वन, द फोर्थ राउंड? हाँ आगे बढ़िए। माय सिटी पुणे। मार्क्स 10 marks. All rounds has 10 marks except wipe out. Okay. So this round each question will be having 10 marks for each. और इसमें there is no options in these questions, ठीक है। तो आपको गेस करना है। तो और इसकी राउंड की शुरुआत हम करेंगे टीम महानंदा से। पहला क्वेश्चन, ये तो मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से तैयारी करके आए होंगे क्योंकि ये पूरे क्विज में ये एक टॉपिक भी था, है ना। सिटी। नेम द फेमस हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ पूर्णिया हुज 300th एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। बताइए। फिर कोई नहीं बताएगा ना पीछे से, क्यों हेल्प करना, अपना चॉकलेट क्यों गवाना है। हाँ। एंड participants here, please do not go by what audience says to you. You use your own mind and wisdom. कई बार ना पीछे वाले गलत भी बता देते हैं, तो जो भी पीछे वाले की बात सुनेगा उनको नुकसान भी हो सकता है ना सर। जल्दी, टाइम नहीं मिलेगा। बताइए प्लीज।
सर अभी आगे से 10 सेकेंड 15 सेकेंड का वो देखते हैं, पढ़ना है इसमें। आपका टाइम अप हो गया, ठीक है? किसी को पता है? अरे बाप रे बाप। हाँ, जलालगढ़ फोर्ट। I think the Vidya Vihar students from Vidya Vihar Residential School had visited Jalalgarh Fort on its 300th anniversary. Am I right, student? ओह वाह, चलो इनको टॉफी दिया जाए। क्या बेटा किस स्कूल से आप? DAV। Very nice. Give a big hand for him, please. और टीम महानंदा को 0। सेकेंड क्वेश्चन। वैसे इतने हमारे जो मतलब ऑडियंस है ना, इतनी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है कि हम इनके लिए अलग से राउंड खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फेमस हिस्टोरिक। अभी नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन दीजिए सर। In which place of the Purnia district Ashokan pillar has been found? Question है for team Shaurya। फटाफट 15 सेकेंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूर्णिया के किस जगह पर अशोकन पिलर पाया गया है? राजगीर। राजगीर। हम लोग पूछ रहे हैं बेटा पूर्णिया के किस जगह? पूर्णिया के किस सेंटर? ये सिटी राउंड है किस आपका? साइड पे? पूर्णिया के किस साइड? इसमें जितने भी आंसर है ना वो पूर्णिया रिलेटेड है, इसलिए आपका जो सोच का दायरा होना चाहिए बहुत छोटा होना चाहिए। वैसे तो हम बड़े सोच की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सोच काम करेगा। 15 सेकेंड मेरे ख्याल से हो गया। आपका टाइम अप। अदर देन विद्या विहार और DAV। लड़कियां आएगी? कोई लड़कियां आएगी? नहीं नहीं, लड़कियां आएगी। लड़कियां उसमें से पीछे बैठी हुई। आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि सब कुछ तुम ही लोग बोलो। हाँ, My name is Harsha Singh and I study in class grade 6th. Which school? Kichwania International School. Yeah, what is the answer? Banmanki. आंसर दिखाया जाए। सीकलीगढ़ नियर बनमनखी। सीकलीगढ़ नियर बनमनखी, लेकिन फिर भी बच्ची ने अटेम्प्ट किया तो कुछ तो बनता है ना। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर। अगला सवाल जो है वो टीम कोसी के लिए है। तैयार हो? अगला सवाल दिखाया जाए। Which town or city near Purnia has been named after a European indigo planter, Alexander John Forbes? हाँ। Which town or city? फॉरबिसगंज। फॉरबिसगंज। फॉरबिसगंज मतलब फॉर्ब्स है तो फॉरबिसगंज। कई बार ये गलत भी हो जाता है, इसलिए सोच समझ के जवाब दो। अररिया। फॉरबिसगंज। हाँ? फॉरबिसगंज। फॉरबिसगंज। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस कि कोई सामने वाला डिगा दे, बेवकूफ बना दे, बेवकूफ नहीं बनना है। प्लीज गिव ए बिग हैंड। फॉरबिसगंज इज द राइट आंसर फॉर। कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ताकि कैंडिडेट जो भी कंटेस्टेंट है वो कंफ्यूज हो जाए। विद्या विहार स्कूल के जो बच्चे हैं, डोंट बी पार्शियल, सभी के लिए ताली बजाना है, ठीक है ना? सिर्फ विद्या विहार टीम के लिए नहीं बजाना। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू। अक्सर बच्चे जो है ना इस तरह के क्वेश्चंस में घूम जाते हैं कि अरे इतना इजी तो सवाल होगा नहीं, पक्का इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है। लेकिन आप लोग इस मतलब घूमे नहीं और बिल्कुल अपने आंसर्स पे डटे रहे। इट्स वेरी बिग थिंग। Raghav, can you tell us something about Alexander Forbes? Do you know something about him? Who was he? No, I don't know. I just guessed it. You guessed it. Okay, fine. He was one of the famous European indigo planter. Children, if you go around Purnia, in Rambagh and around the Sora River, and in Kajakoti area also where this Vidya Vihar school is located, you will find some of the kotis belonging to European indigo planters. Okay, ma'am. और ये मेरे ख्याल से महिला अंचल में फॉरबिसगंज का जिक्र भी है ना? जी जी, और इनफैक्ट ही बिलोंग रेणु जी फॉरबिसगंज से ही थे। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर थर्ड टीम। द पॉपुलर उद्यान लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पुर्निया सिटी एंड द फेमस स्मारक नियर बानभाग ब्रिज आर नेम्ड आफ्टर विच रिनॉन्ड फ्रीडम फाइटर। क्वेश्चन बेटा ये है, समझ लीजिए कि आप लोग ध्रुव उद्यान के बारे में जानते हैं जो भी पूर्णिया में रहते हैं, तो ध्रुव उद्यान जो है और एक फेमस स्मारक है। आप यहाँ से अभी जो क्विज के लिए आ रहे होंगे तो बनभाग पुल से पहले एक साइड में स्मारक बना हुआ है। तो वो दोनों ही चीजें जो हैं वो किसी न किसी एक बहुत फेमस
फ्रीडम फाइटर हैं जो पूर्णिया से थे, उनके नाम पे है। तो आपको उन फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है। आपके पास 15 सेकेंड ही हैं, जिसमें से 10 सेकेंड निकल चुका है, 5 सेकेंड और। राजेंद्र प्रसाद। No, it's चलो, wrong. it's wrong. Anybody from the audience? लड़कियां आ जाओ। और आप पता है आपको आपको सफिशिएंट ये मत सोचना कि मैं लड़कियों को फेवर कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि पहले बहुत सारे लड़के आंसर कर चुके हैं। ध्रुव कुंडू। ध्रुव कुंडू, वाह। ध्रुव कुंडू। It is the right answer. Please give a big hand for her. बेहतरीन क्वेश्चन। आपको पता है बच्चों ध्रुव कुंडू कौन थे? ये ध्रुव कुंडू 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की जो प्रोसेसन चल रही थी और उसका जो पूर्णिया वाला पार्ट का प्रोसेसन चल रहा था, ये यंग लड़का, इसके फादर डॉक्टर थे कटिहार में, एंड ही बिकेम द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेसन, एंड इन दैट प्रोसेसन, व्हाइल गोइंग इन द प्रोसेसन ही डाइड। सो द टू स्मारक जो है, एक ध्रुव कुंडू के नाम पे बनभाग पुल से जब आप गिरजा चौक की तरफ मूव करेंगे वहां देखेंगे, और ध्रुव उद्यान भी उन्हीं के नाम पर है। यदि गंगा टीम थोड़ा भी आपने माइंड अप्लाई किया होता, मेरे मुंह से निकल गया था ध्रुव उद्यान, यू डिड नॉट यूज दैट वन। मुझे लगा कि आप तो ये आंसर कर देंगे क्योंकि सर ने नाम बता दिया। वही मैंने कहा ना सर कि कई बार ना बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम आ भी जाता है तो उनको लगता है नहीं इतना इजी तो नहीं होगा, सर ने बता दिया तो ये तो चलिए, बट प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दैट गर्ल, शी हैज गिवन आंसर टू अ मार्वेलस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है, अब क्योंकि हमारी टीम का क्वेश्चन खत्म हो, मतलब टीम खत्म हो गई, अब 4 क्वेश्चन उन्होंने खेल लिया। अरे वाह, अब इतने बच्चों को एक क्वेश्चन कैसे पूछूं? वहीं से आवाज जोर से बोलो, आंसर दिखाइए। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। वाह, बहुत अच्छे। और आपको पता है जहां विद्या विहार स्कूल आपका लोकेटेड है, उसी के पास इनका गांव है, राइट बेटा? मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के बच्चे अपने हेरिटेज को लेके बहुत जागरूक हैं, और शायद इसका सबसे बड़ा श्रेय शायद रमन जी को जाता है, इंटेक को जाता है, या फिर उनके स्कूल्स को जाता है, जो कि इस तरह के इवेंट्स करवाते रहते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों में इतनी जागरूकता है अपने हेरिटेज को लेके। वरना नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है, नहीं होता है, बच्चों को इतना पता नहीं होता अपने हेरिटेज के बारे में। उनसे फिल्म की क्वेश्चंस पूछ लो, गाने के क्वेश्चंस पूछ लो, बाकी जितने भी दुनिया भर की सोशल मीडिया, ये दिस दैट, सबके आंसर कर देंगे, लेकिन उनके हेरिटेज के बारे में अगर पूछा जाता है तो 100 में से मुश्किल से 20 से 30 आंसर आ पाता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टफ क्वेश्चंस को भी आप लोग आंसर कर रहे हो। जी अच्छा, इसीलिए सर सबको पता है, क्योंकि स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है ना बच्चों को अपने उनके हेरिटेज से जोड़ने में। आगे बढ़िए। What is the name of the famous Shaktipeeth located in the Purnia district? This temple is also associated with the famous Shaktipeeth of Assam. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और आप गेस भी कर सकते हैं। यस 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 प्लीज, दैट गर्ल, नाम बताइए, स्कूल बताइए प्लीज। I am Himanshu Bhagat from Milia Convent English School. Very nice. Ma'am, its answer is Puran Devi. No. Anybody else? My name is Sahitya Mishra. I am from SRDAV Public School, and the correct answer is Kamakhya Temple. Wow, the right answer is Kamakhya. मतलब असम में कौन सी मंदिर है? आप लोग सुनते होंगे बच्चों, मम्मी पापा बराबर कहते होंगे कि कामाख्या स्थान जा रहे हैं, एंड द सेम। ओके, तो वही तो पहले सबसे पहला नियम है कि जो भी चीज आपके सामने आए उसको अच्छे से पहले देखो, परखो, उसके बाद आंसर करो। और ये आप देखेंगे, ये कामाख्या स्थान जो है आसाम में जो है, उसका ऐसा माना जाता है कि उसका एक पिंड जो है वो पूर्णिया के पास, हरदा के पास, लगभग पूर्णिया शहर से 15 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है। तो कामाख्या देवी मंदिर वहां भी हम लोगों के पास है। आगे बढ़िए। और क्वेश्चन बचे हैं क्या? नहीं, 5वां राउंड है, और ये राउंड जो है वो इनटेक से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इनटेक के बारे में होंगे, ठीक है? और इस राउंड की शुरुआत हम करेंगे टीम गंगा से। तो पहला सवाल, द लोगो ऑफ इनटेक is based on the
anthropomorphic copper figure found from which archaeological sites of Uttar Pradesh? The answer will be Shahpur. आंसर दिखाया जाए कंप्यूटर जी। Shahabad, sorry. गलत जवाब। आप पढ़ के आए थे शाहपुर? शाहबाद मैम, शाहपुर हो गया गलती से, बट शाहबाद था। तो क्या किया जाए रमन जी? मैम आधा मार्क्स दिया जाएगा, हाफ आधा मार्क्स, 5 मार्क्स दे दीजिए। बेटा क्विज कंपटीशन में मिस्टेक का कोई गुंजाइश नहीं पहले होता है। क्विज का जो भी टीम क्या होता है, टीम हम क्यों टीम में बिठा रहे हैं लोगों को? आप अकेले भी तो खेल सकते थे ना। आप दोनों डिस्कस करते और टीम भावना के साथ करते। तो सबसे पहला जो रूल होता है कि टीम भावना के साथ कोई भी गेम खेलना। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, अगर सब अपनी अपनी दिशा में खेलेंगे तो कभी टीम जीत पाएगी क्या? नहीं जीतेगी ना। इनफैक्ट इसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन आपको हाफ मार्क्स दिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि आपकी जो सेकंड टीम मेंबर थी उनको पता था, तो इसलिए ठीक है। और आगे से आप सबके लिए है, पहले आपस में डिस्कस कीजिए। 5 सेकंड डिस्कस, 5 सेकंड पढ़िए, 5 सेकंड डिस्कस कीजिए और फिर आंसर कीजिए, ठीक है? भले ही आपको क्वेश्चन आंसर आ रहा हो, फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the award given by the INTEC for the exemplary contribution to the protection of the environment and natural resources? नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज। ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए बच्चों। 4 पेज की फैक्ट शीट आप लोगों को दी गई थी, आप 4 पेज से भी नहीं पता? नहीं पता? किसी को पता है? अब लड़कियों को नहीं दूंगी, वरना ये लोग बोलेंगे कि पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है? एक मैम दिया जाए मैम, कोई दिक्कत नहीं। आज हम सब एक साथ बोलेंगे, चारों एक साथ बोलेंगे, ठीक है? एक साथ, एक सुर में। 1 2 3। अनिरुद्ध भार्गव। अनिरुद्ध भार्गव। आंसर दिखाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही। ये आप लोग 4 पेज का फैक्ट शीट था जो सबको दिया गया था, आप उससे नहीं पढ़ पाए। कई बार लोग मिस कर जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन टीम शौर्य के लिए। The famous Hotel de Lorient, restored by the INTEC in 2000, is located in which Indian city? The famous Hotel de Lorient, restored by the INTEC in 2000, is located in which Indian city? सोचिए, डिस्कस कीजिए, देन आंसर। ये एक हेरिटेज होटल है और इसको INTEC ने 2000 में रिस्टोर्ड किया और फिर इसको चालू किया गया। यह एक बहुत ही प्राचीन, मतलब बहुत ही फेमस इंडियन सिटी में है, और वो इंडियन सिटी जो है वहाँ पे फ्रेंच डोमिनेशन था। पोर्तुगीज नहीं, फ्रेंच ना, फ्रेंच था। अब इतना हिंट तो मैंने दे दिया। इलाहाबाद। इलाहाबाद तो ब्रिटिश के अंदर था। मैम ने सफिशिएंट हिंट दे दिया था आपको। महाराष्ट्र। एक ही साथ चारों बोलो। मैं बोल चुका है एक बार। चलिए बोलिए प्लीज, कोई बात नहीं। पौंडीचेरी। कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए। देखिए ना, और मैम ने सफिशिएंट हिंट दे दिया था। और ये प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि जो चीजें हाथ में दी जाती है ना, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जो चीजें आपको हाथ में मिली उसकी वैल्यू नहीं किया, और जो चीजें नहीं मिली थी वो उसको अच्छे से आंसर कर दिया। तो ये पता होना चाहिए था जो चीजें दी गई हैं। और जिस संस्था के अंदर ये क्विज हो रहा है, तो एटलीस्ट सबसे पहला रूल होता है, आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं ना। ये पूरा क्विज INTEC करवा रहा है, तो सबसे पहले आपकी ये, मतलब जो पहला आपका प्रयास होना चाहिए था, पहले जो आपको आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी कि INTEC के बारे में हम पता कर लें। और आपको तो पूरी की पूरी फैक्ट शीट दी गई थी, तो करना चाहिए था, ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं और टीम महानंदा के लिए अगला क्वेश्चन। What is the name of a documentary made by INTEC that won the Director Special Award at the Heritage Film Festival 2015? ये एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसे INTEC ने बनाया था और इसको डायरेक्टर स्पेशल अवार्ड दिया गया था 2015 में। रमन जी भले ही टीम आंसर नहीं कर रहे, देख लीजिए जिन बच्चों ने उस फैक्ट शीट को पढ़ा था वो सामने आ रहे हैं। भले वो यहाँ नहीं पहुंच पाए पोडियम पे, लेकिन दे आर रेडी टू आंसर। तो इनके ये तो आंसर कर नहीं पाए, तो इनको 0 मार्क्स। और अब मैं किन से पूछूं? अब आप एक साथ आंसर देंगे, आप जितने लोग खड़े हैं बताइए प्लीज। ब्लैक पॉटरी ऑफ निजामाबाद।
कंप्यूटर जी आंसर दिखाइए जरा, देखते हैं क्या है, इतने बच्चे सही है या गलत। देखिए ना, बिल्कुल वेरी नाइस। सही, इन बिल्कुल सभी के लिए सही। जोर से तालियां बजाइए। हाँ, जोर से। अरे और सभी को एक टॉफी दे दीजिए प्लीज। जोर से बजाइए ताली। एक बार जोर की ताली तो बनती है बच्चों। चलिए, मेरे ख्याल से ये राउंड यहीं पे खत्म हो गया और ये लास्ट राउंड था ना? जी मैम, ये इंटेक लास्ट राउंड था। अच्छा, अब मैंने जो आप लोगों को शुरुआत में बोली थी कि यहाँ पे एक आप लोगों के लिए बोनस है। जो बच्चे आए यहाँ पे रिटर्न टेस्ट जिन्होंने दिया और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, यहाँ तक नहीं आ पाए ऊपर तक, उनके लिए हमारे पास एक बोनस है। तो 5 बच्चे आ जाएं। अलग अलग, एक ही राउंड से नहीं आएंगे, अलग अलग स्कूल के बच्चे होंगे। अच्छा, मैं नाम लेता हूँ स्कूल्स का। प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाइए, एक बार फिर से बैठ जाइए। तो गो बैक टू योर सीट प्लीज। यस, गो बैक टू योर सीट। सर आप नाम, स्कूल का नाम बोलिए और वो आ जाएं। जिस स्कूल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। सेंट पीटर्स, एक बच्चे आ जाए, उसमें से एक बच्चे आ जाए। उर्सलाइन, एक बच्चे। माउंट कार्मेल के 2 ब्रांच थे, दोनों ब्रांच से एक आ जाएं। जिला स्कूल, एक बच्चे आ जाएं। बीबीएम हाई स्कूल, एक बच्चे। और यहाँ पे ना हाथ उठाना है, ठीक है? कोई आंसर नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा। ड्रीम कॉन्सेप्ट से एक बच्चा। और कोई स्कूल छूटा तो नहीं है? मिलिया से एक बच्चा। विद्या विहार का तो पोडियम पे है बेटा आपका, जो पोडियम पे है उनके स्कूल्स नहीं। तो कंप्यूटर जी, इस राउंड में हम वीडियो दिखाएंगे और आप लोगों को एक वीडियो दिखाया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो चलने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? तो पहला वीडियो दिखाया जाए। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को मिलेगा। बहुत खुशनसीब है ना? लकी, वेरी लकी। माफ करना बाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। स्टॉप कर दीजिए, मेरे ख्याल से खत्म ही है। अब आपने वीडियो देखा। अब इस वीडियो से सवाल यह है कि ये जो क्लिप दिखाया गया, इसमें 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जा रही है। एक का नाम तो उन्होंने लिया ही, भगतिया, मतलब भगत। इससे मैं 2 सवाल पूछूंगी। पहला सवाल यह है कि बाकी जो क्रांतिकारी थे उनका नाम क्या था? सबसे पहले इसने उठाया। राजगुरु एंड सहदेव। सुखदेव। हो गया, राजगुरु सुखदेव ही है सही आंसर। राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। मतलब ये सब क्लिप दिखाने का मकसद ये है, जो आप लोग नई पीढ़ी है, आपको समझ में आनी चाहिए कि कितने कम उम्र के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया है ना। तो हमें इस आज़ादी को संभाल के रखना है, इसको रिस्पेक्ट देना है। तो राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी उस दिन एक साथ। बिल्कुल सही आंसर, इनको दिया जाए टॉफी। और दूसरा सवाल यह है कि यह फांसी किस शहर में हुई थी? किस शहर में यह फांसी हुई थी?
नहीं पता? किसी को पता है? ये बिल्कुल सही, यह फांसी लाहौर शहर में हुई थी और इस पूरे जो जगह है वहाँ को बहुत अच्छे से पाकिस्तान में एक मूवमेंट चला था कि जो भगत सिंह की फांसी जहाँ पे हुई है उसको एक हेरिटेज साइट बनाया जाए, और उसके लिए शायद कुछ पाकिस्तान की सरकार कर रही होगी, क्योंकि भगत सिंह ने हिंदुस्तान के लिए नहीं, मतलब आज़ाद, उन्होंने कंबाइंड हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ा था। तो जितना वो हिंदुस्तान के हैं उतना ही पाकिस्तान के लिए, और यहाँ के पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो दिखाया जाए। एक तरफ था राजा हेमू, जिसकी सेना मुगल सेना से 2 गुना अधिक थी, और दूसरी तरफ था बैरम खान, शहंशाह हुमायूं का वफादार सेनापति, जो 13 वर्षीय जलालुद्दीन के कच्चे नाखून तेज कर रहा था। पर गहराई तक कदम जमाना है। कलाई की ताकत और हौसले की गर्मी ही फतेह के दावों को जिंदा रखते हैं। अब ये वीडियो क्लिप आपने देखा। सवाल ये है कि ये जो इवेंट दिखाया गया, एक युद्ध का मैदान है, ये कौन सा युद्ध लड़ा जा रहा है इसमें? फिर आप लोगों से तो पूछा नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे है ना टीम, जिन लोगों को मौका नहीं मिला, जिन स्कूल्स को मौका नहीं मिला, उनके साथ हम ये ग्राउंड खेल रहे हैं। किसी को पता है? पहले बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा? 3 बैटल में फर्स्ट, सेकेंड बैटल। सही है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। कितने लोग सहमत हैं कि ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था? और कितने लोग सहमत हैं कि ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था? कोई नहीं, मतलब कि ऑडियंस ने जवाब दे दिया कि ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था। तीसरा दिखाया जाए। Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from. Poor, sweet little girl. अब ये एक फिल्म है जो एक किताब के ऊपर बेस्ड है। किताब का मुझे पता है, आप सबको नाम पता होगा। कौन सी किताब है? हाँ, अब ये कैरेक्टर कौन सा है? ये जो छोटा सा बच्चा है। वाह, कितना पता। मैंने कहा ना, फिल्मों के बारे में कुछ भी पूछ लो, सब कुछ पता होता है। आगे बढ़ते हैं। किसने लिखी थी किताब द जंगल बुक? कितने लोगों ने पढ़ी है ये किताब? काफी अच्छा, तो आप लोग किताबों में भी इंटरेस्ट रखते हैं। वेरी गुड। सेकेंड वाला नहीं चलाया आपने, सेकेंड वाला चलाइए। प्रीति मैम जहां भी हो प्लीज स्टेज पे आ जाए। मतलब मैंने सवाल भी नहीं पूछा और हाथ बढ़ा दिया। बताओ जरा क्या है इसका आंसर? ये ओनम पर्व में। लेकिन मेरा ये सवाल तो था ही नहीं ना। मेरा ये सवाल था कि ये किस स्टेट में होता है, ना मेरा ये सवाल था कि ये किस फेस्टिवल पे होता है। मेरा सवाल है कि इस गेम में लास्ट में एक ट्रॉफी दी जाती है, वो ट्रॉफी किन के नाम पे है, या फिर उस ट्रॉफी का नाम क्या है? यही नुकसान होता है पहले हाथ उठा देने का। हो सकता था पहले मैं वही पूछती जो आप जिसका आंसर आपने दिया, लेकिन अब तो मेरा सवाल बदल गया। किसी को पता है? आ जाओ। बर्बरिक नहीं, एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे है ये ट्रॉफी। बिल्कुल सही, वो दोनों लड़कियों ने जवाब दे दिया, उनको ट्रॉफी दिया जाए, क्योंकि बाकी किसी ने नहीं दिया। नेहरू ट्रॉफी।
और कुछ बचा है क्या कंप्यूटर जी? वीडियो? नहीं उठा रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं कहीं क्वेश्चन नहीं ना चेंज कर दे, है ना डर। मेरा सवाल ये है, ये एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे ये फिल्म बेस्ड है। अब आपको उस हिस्टोरिकल कैरेक्टर का पूरा नाम बताना है, ठीक है? फर्स्ट क्लास नहीं, पूरा नाम बताना है बस। हाँ देखा, पूरा नाम पेशवा बाजीराव बल्लाळ प्रथम। उनको पेशवा बाजीराव प्रथम भी बोला जाए क्योंकि पेशवा बाजीराव 2-3 हुए थे, तो उनका पहला दूसरा तीसरा यही सब रूल्स होता था ना पहले ज़माने में। एक ही नाम से 5 नाम रख दो और पहला दूसरा तीसरा कर दो। एक और वो आप वो बता, लास्ट वाला एक वीडियो चला दीजिए जिसमें आप वीडियो प्ले, हाँ वो वाला चला दीजिए। जनगण मन अधिनायक जय हे। और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ये गुरुदेव की खुद की आवाज़ में ये पोएम गाया गया है। मेरा सवाल ये है, ये जनगण मन हम जानते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब इस पोएम का शीर्षक क्या था, किसी को पता है? क्योंकि इसका एक स्टेंजा राष्ट्रगान है, लेकिन ये पोएम तो बहुत बड़ा था ना, तो उसका शीर्षक क्या था? आनंद मठ। आनंद मठ किताब थी जिसमें भारत भाग्य विधाता, हाँ। और ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? बांग्ला। तो चलिए, और लास्ट हमारा यही था, हर जो भी हमारा मतलब एक सामाजिक समारोह होता है, जो इवेंट होता है, उसका अंत हम राष्ट्रगान के साथ करते हैं। तो हमारा ये सवाल अंतिम सवाल था, और इसी के साथ ये क्विज ख़त्म होता है। और अभी हम स्कोर की बात करेंगे। मैम, तो सुशील जी, आप लोग इन लोगों को ट्रॉफी दिया जाए। कहाँ है सर? इन बच्चों को ट्रॉफी दिया जाए। और चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा? ऊपर ना पहुंचने का कोई मलाल है आप? नहीं है ना? तो आप सबने बहुत अच्छा खेला, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि जो बैक बेंचर्स भी हैं, उनके अंदर भी जो एनर्जी थी ना, वो एक बहुत अच्छी बात थी। तो बैक बेंचर्स के लिए एक बार तालियां हो जाए, एक बार लड़कियों के लिए तालियां हो जाए। मतलब लड़कियों के लिए तालियां नहीं बजाना है, जोर से एक बार ताली हो जाए लड़कों को। यस, ये पीछे में जो बैठे हैं उनकी ताली नहीं बज रही है। अब रुको, लड़कियों के लिए सिर्फ लड़के ताली बजाएंगे, लड़कियां नहीं बजाएंगे। हाँ, अब लड़कों के लिए सिर्फ लड़कियां ताली बजाएंगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। और एक बार इन टीम्स के लिए, इन चारों टीम्स के लिए जोर की ताली तो बनती है बच्चों। वेरी नाइस। एक बार कमिश्नर सर के लिए, इतनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और सर के लिए भी, आपके जो डायरेक्टर सर उनके लिए भी। चलिए, एक बार रमन जी के लिए, एक बार राजेश जी के लिए, और एक बार कंप्यूटर जी के लिए। और इंटेक के को कन्वीनर अमित जी भी यहाँ पे हैं, एक बार जोर से ताली बनती है उनके एक बार सुशील जी के लिए। ठीक है, तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, और उम्मीद है कि आगे फिर। और एक बार अर्चना मैम के लिए जोर से ताली बजा दीजिए प्लीज। आज हमारे बीच उपस्थित हुई और इतना हौसला अफजाई उन्होंने किया। वी रियली थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, और जो भी आप बच्चे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सर, कमिश्नर सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा पल था कि मैं इतने बच्चों के बीच इतने बड़े समारोह में आप लोगों के सामने हूँ।
थैंक यू। थैंक यू मैम। और इंटेक के कन्वीनर राजेश जी हमारे बीच में हैं, एक बार जोर की ताली तो बनती है उनके लिए। अब समय आ गया, दिल थाम के बैठ जाइए, जिसका इंतजार सभी लोग कर रहे थे। और कई दिनों से हमारे सारे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे खूब जबरदस्त तैयारियां कर रहे थे, कोई जो भी स्कूल वो हो, पूरी ताकत उन्होंने लगा दी थी। और हम लोग उन स्कूल्स के प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजमेंट सभी को धन्यवाद देते हैं, और जो टीचर कोऑर्डिनेटर उनको लेके आए हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी हैड टुडे, इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर कंडीशन ऑल्सो, almost 100% students reached here, 100% participants reached here. We really salute you, sir, and we really salute the management of those schools. And हम सभी एक हिस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। आज ये जो राउंड चल रहा था, भारत का लार्जेस्ट क्विज एक्सरसाइज इंटेक के द्वारा पूरे भारत में चल रहा है। तो वी आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। सो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर द इंटेक। और अब मैं हमारे बीच सुशील जी से आग्रह करूंगा कि जिस मोमेंट का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, और हमारे पास ऑलमोस्ट 70 टीम्स आए थे डिफरेंट स्कूल से। ऑल टुगेदर 140 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जी सर, जी सर। जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट किए थे, प्लीज कैन यू स्टैंड अप? द पार्टिसिपेंट्स प्लीज। इन सभी के लिए जोर की तालियां बजाएं सभी लोग। बच्चों, आप आए, पार्टिसिपेट किए इतने एंथुजियाज्म के साथ, और हम लोगों ने ये देखा कि आप भले ही पोडियम पे नहीं पहुंचे, लेकिन जो क्वेश्चंस ऑडियंस के लिए थे, आप उसमें बहुत बेहतर किया आप लोग। यदि आप लोग शायद पोडियम पे होते तो आप भी जीत पाते आज। तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ चांस। और नेक्स्ट ईयर और हम इससे ज़्यादा मजबूती के साथ करेंगे, और आप सभी के पार्टिसिपेशन को एक्सपेक्ट करेंगे। तो आप सभी को कुछ देर में टॉफियाँ मिलेंगी, है ना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सिट डाउन। और अब मैं सुशील जी से आग्रह करता हूं, क्या बच्चों रिजल्ट अनाउंस किया जाए? क्या सही में आप इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? हाथ उठाइए। तो वो पूरा हॉल ही उठा रहा है। चलिए सुशील जी को लाते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। हम उस समय से देख रहे हैं जब वहाँ हुआ। जो बच्चे चयनित होकर आए हैं उनको विशेष रूप से बधाई। बाकी जीतना हारना एक दिन की बात नहीं होती है। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एक दिन में कुछ क्वेश्चन से उसको नहीं हम माप सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लग जाता है कि बहुत सारे सवाल में से कुछ आए और उन्होंने बताया, इसका मतलब है कि वो थोड़ा बहुत उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप सबने बहुत अच्छा किया, और मैंने देखा कि सब लोग काफ़ी उत्साहित होकर बहुत सारे सवाल बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा, और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ, और सब बच्चे जो इसमें टॉप किए हैं, या जो चौथे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर, सब अच्छा किए हैं, और सब काबिल तारीफ़ हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। चौथे नंबर पे हैं सौर्य टीम। सौर्य टीम चौथे नंबर पे, एक बार जोर की ताली बजाएं लोग उनके लिए। वो भले ही चौथे नंबर पे आ जाएं, हो सकता है अगले बार वो। बिल्कुल, और ये हो सकता है कि यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब वो काफ़ी अच्छे हैं। फिर तीसरे नंबर पे हैं गंगा। एक जोर की ताली गंगा टीम के लिए बजाएं सभी लोग। और दे ट्राइड देयर बेस्ट। ये दूसरे नंबर पे है महानंदा। महानंदा के लिए जोर की ताली। विनर कोसी टीम है, बहुत बहुत बधाई। बहुत जोर की ताली बजाएं प्लीज। सबने बहुत अच्छा किया, और सबको बधाई। आगे भी करते रहे। इंटेक का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं विद्या विहार स्टूडेंट्स, आप बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आपकी टीम डिस्ट्रिक्ट राउंड चैंपियन बनी है, लेकिन सभी टीम ने बहुत अपना प्रयास किया, सभी टीम ने बहुत ही प्रयास किया। इन चारों टीम के लिए एक बार जोर की अप्लाउज। और थोड़े से मार्जिन के लिए महानंदा टीम रह गई, थोड़े से मार्जिन के लिए। सो यहां जितने स्कोर जो है
सुशील जी सुनाएंगे। सौर्य का स्कोर 5, गंगा 30, महानंदा 40, कोसी 45। जो डिस्ट्रिक्ट, नाउ द कोसी टीम हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डिस्ट्रिक्ट चैंपियन एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द Purnia district at the state level now. That will happen in October, November. We will inform them later. So यहाँ एक बार चारों टीम के लिए एक बार let us give a big round of applause for them. Thank you, सुशील सर। बच्चों, सुशील जी हमारे बीच उपस्थित हुए, कल रात से ही वो यहाँ बने हुए हैं हौसला अफजाई के लिए। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोर की ताली उनके लिए बजाएं। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। ये आप ही लोगों के लिए आए हैं, आप ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अब मैं रीता मिश्रा मैम से आग्रह करूंगा कि वह अर्चना मैम को अंग वस्त्र भेंट कर, शॉल भेंट कर उनका सम्मान करें। अर्चना मिश्रा मैम जिन्होंने इतना अच्छा क्विज कंपटीशन करवाया और वो कल रात ही यहाँ पहुँच गई। वी रियली थैंक यू वेरी मच मैम। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। Just we'll request just to keep paces for 10 minutes. We'll finish it up and we will also give the certificates. We have already prepared that. We will hand over to the teacher coordinator. So cups and medals उनको देंगे। मैं राजेश सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो काइंडली स्टेज पे आए और सौरा टीम जो आज 4th आई है, प्लीज आप स्टेज पे आगे। DAPS स्कूल से सौरा टीम बनी थी फिनिश के लिए। इन बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। नेक्स्ट टीम इज गंगा टीम। मैं अब विद्या विहार के फाउंडर रमेश सर से आग्रह करूंगा कि काइंडली पोडियम पे आए। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि गंगा टीम को सम्मानित करें। इनका रैंक 3rd रैंक आया था, आज पोडियम फिनिश था। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर देम। नेक्स्ट टीम गंगा महानंदा टीम, प्लीज कम फॉरवर्ड। सुशील बाबू, अर्चना मैम सभी से रिक्वेस्ट है काइंडली स्टेज पे आए। निखिल सर प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर महानंदा टीम। और अब हम कोसी टीम को लाएंगे सामने। कोसी टीम जो आज की चैंपियन रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। कमिश्नर साहब से और रमेश सर से आग्रह है कि इन बच्चों को फैसिलिटेट करें। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है विद्या विहार के लिए, विद्या विहार के बच्चों और सभी लोग, सभी स्कूल्स के बच्चे। लेट अस गिव अ बिग हैंड फॉर देम। थैंक यू सर। Yes, very good. बहुत बढ़िया बच्चों। ये अप्लाउज सभी के लिए है, सभी टीम के लिए है जो यहाँ प्रेजेंट हुए थे। अब मैं स्कूल कोऑर्डिनेटर्स को बुलाऊंगा, काइंडली अपने बच्चों का सर्टिफिकेट लेंगे। ब्राइट करियर स्कूल, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आवर ब्राइट करियर कोऑर्डिनेटर। मैं निखिल सर से आग्रह करूंगा कि विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल के बिहाफ पर एज ए कोऑर्डिनेटर प्लीज सर्टिफिकेट्स बच्चों का लिया जाए। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम।
उन्होंने बहुत मेहनत की है इस क्विज कंपटीशन के लिए। नाम न्यू माउंट कार्मेल स्कूल के लिए टीचर कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट है काइंडली पोडियम पे आए, स्टेज पे आए। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर हिम आल्सो। इन सभी टीचर कोऑर्डिनेटर्स ने और बच्चों ने बहुत मेहनत किया। नेक्स्ट अगेन माउंट कार्मेल सेकंड स्कूल, टीचर कोऑर्डिनेटर फॉर माउंट कार्मेल अगेन। उर्सुलाइन कॉन्वेंट के टीचर कोऑर्डिनेटर वो भी स्टेज पे आ जाएं। जिला स्कूल के टीचर कोऑर्डिनेटर से भी रिक्वेस्ट है। जी जिला स्कूल के बाद नाउ वी रिक्वेस्ट सेंट पीटर स्कूल कोऑर्डिनेटर, सेंट पीटर स्कूल के कोऑर्डिनेटर, उसके बाद ड्रीम कॉन्सेप्ट पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर को रिक्वेस्ट करूंगा। ड्रीम कॉन्सेप्ट ड्रीम कॉन्सेप्ट स्कूल के कोऑर्डिनेटर, बीबीएम हाई स्कूल के कोऑर्डिनेटर, सीनियर डीएवी पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर, एसआरडीएवी अंजनी बाबू, सर काइंडली वहां जाइए। ड्रीम अचीवर पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर, रेसिडेंशियल डीएपीएस स्कूल के कोऑर्डिनेटर, एक जोर की ताली बच्चों इन सभी कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो इन्होंने बच्चों के साथ इतना मेहनत किया। रेसिडेंशियल डीएपीएस स्कूल के कोऑर्डिनेटर, डीएपीएस मिलिया स्कूल के कोऑर्डिनेटर, मिलिया कॉन्वेंट के कोऑर्डिनेटर। अच्छा ठीक है, हम लोग वो भिजवा देंगे सर्टिफिकेट्स। थैंक यू वेरी मच सर। एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द कन्वीनर ऑफ इंटेक पूर्णिया चैप्टर श्री राजेश जी टू गिव ए वोट ऑफ थैंक्स। नाउ आई रिक्वेस्ट द कन्वीनर ऑफ इंटेक पूर्णिया चैप्टर टू गिव ए वोट ऑफ थैंक्स। First and foremost, I would like to thank our Honorable Commissioner who agreed to attend this program as soon as he knew about the program. एक बार मैं बोला और सर ने कहा कि हाँ बिल्कुल रहूँगा सर। तो सर आपके इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम प्लीज। इतने पेशेंस के साथ अंतिम वक्त तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद इस मौसम में इतने सारे बच्चे यहाँ शहर से दूर चले आते हैं किसी आयोजन में, तो बच्चों को धन्यवाद बनता है। आप लोगों ने गजब काम। एक बार सारे बच्चों के लिए, सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जोर की तालियां। और उन स्कूलों के शिक्षकों का धन्यवाद जो साथ में कंपनी कर रहे हैं अपने बच्चों को, उन स्कूलों का धन्यवाद।
और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह का इवेंट हम लोग और भी कुछ एनुअली कर सकें। और हमारे सुशील जी जो हैं सो मतलब स्कूल के हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। ये उनका सर का तीसरा विजिट है और हर बार जो है सो कुछ इनसे हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, हमारे बच्चों को सीखने को मिलता है। सर ऐसे ही जो है सो हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी के लिए एक बार जोर की ताली। बच्चों एक बार जोर की ताली। यस, थैंक यू। अर्चना मैम के बारे में जो है जानकारी हुई और मैडम से जैसे ही रिक्वेस्ट किया, मैडम ने जो है सो फिर एक बार में स्वीकृति दी मैडम ने, और फिर शी हैज टेकन ऑल द ट्रबल टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू मैम। प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर अर्चना मैम। इतना जबरदस्त क्विज कंपटीशन उन्होंने करवाया, यहाँ पर राउंड्स को बहुत अच्छे तरीके से लिया उन्होंने। मेरे इंटेक के को कन्वीनर हैं अमित झा जी और या असिस्टेंट को कन्वीनर हैं रमन जी। इनके प्रयास से ये सारा ऑर्गेनाइजेशन हो सका। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो and in the end I am thankful to all our students, all the audience who has watched this program. हम लोग जो स्पिरिट ऑफ क्विजिंग है उसको प्रसारित करना चाहते हैं कि सब लोग आपस में बैठें तब तो कुछ सवाल जवाब हो, कुछ दिमाग की बातें हो, कुछ लोगों का में ज्ञान का आदान प्रदान हो और वो उसके लिए जो माध्यम है वो क्विजिंग आसानी से हो सकता है। तो हैप्पी क्विजिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। सी यू नेक्स्ट ईयर। थैंक यू। और एक बार इंटेक के कन्वीनर के लिए जोर से ताली। राजेश सर ने पूरा संसाधन, पूरी ताकत लगा दी इस क्विज कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। और यहाँ जितने भी बच्चे यहाँ आए, जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी डिग्निटरीज हैं और विद्या विहार के फाउंडर और सारे टीचर्स के लिए एक बार जोर की ताली तो बनती है। थैंक यू वेरी मच।